Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. میرے فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ جوناگڑھ سے تعلق ہے. مائگریشن کر کے 1947 میں پارٹیشن میں ہم لوگ پاکستان آ گئے تھے. بیفور پارٹیشن جوناگڑھ سے تعلق تھا. اس کے علاوہ ہمارا کولمبو میں بھی کافی بزنس تھا. اسی زمانے میں چٹگاؤں میں بھی کافی ہمارے کام وغیرہ تھے. تو پھر ہم کراچی آ گئے. تو جب کراچی آئے تو جو ٹریڈ کا کام تھا وہ یہاں بھی وہی کام سیم بزنس, کوئی چینج نہیں. جیسے جوناگڑھ میں ہماری جیننگ فیکٹری تھی, ٹیکسٹائل مل تھی, پھر ہمارا کموڈیٹیز کا کام تھا, ایکویٹی کا کام تھا. وہی بزنس ہم کولمبو میں کپڑے کا کاروبار تھا. HR کریم کے نام سے ہماری دکان تھی, بہت بڑی شاپ تھی وہاں گولفس اسٹریٹ پہ. اور اس کے بعد HR کریم ہم نے یہاں سٹارٹ کی 1947 میں. آتے ہی یہاں کراچی کی جو کپڑا یہ جیسے نیورام روڈ ہے اس پہ. تو بس اس کے بعد میری تو خیر پارٹیشن کے بعد کی پیدائش ہے. تو یہ تو باتیں ہیں جو سنی ہوئی ہیں, جو گھر میں بڑوں سے سنی تھی وہ بتا رہے ہیں. 57 کی میری پیدائش ہے. اور اس دوران جب 7-8 سال کی عمر سے تو یاد ہے کہ کیا کرتے رہے. تو وہی کاروبار دیکھتے تھے والد صاحب کے ساتھ. تو اسکول وغیرہ جا رہے ہوتے تھے تو اسکول کا شوق پڑھنے کا تھا نہیں, کم تھا. تو کام یہی ہوتا تھا, کنسٹرکشن کا کام تھا, ایکویٹی کا کام تھا. اسٹاک ایکسچینج کا بھی ایک دن ان کے ساتھ چلے جاتے تھے, ایک دن جا کے دکان پہ. وہ اسکول جب ختم ہوتا تھا تو والد صاحب کبھی کبھی لینے آتے تھے, تو انہی کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے. تو شوق کام کی طرف 10-11-12 سال کی عمر سے تھا. 12-13 سال کی عمر میں ہی سٹیا شروع کر دیا تھا. ایک کموڈیٹیز جیسے کوٹن ایکسچینج میں تھی, تو وہاں جا کے بیٹھتے تھے. تو وہاں غلطی بھی ہو گئی, 1-2 کام بھی کر لیا. اور ظاہری بات ہے پاکٹ منی ہوتی کوئی نہیں تھی کہ چھوٹی سی. اس زمانے میں تو شاید 8-آنا روپیہ ملتا تھا, یاد بھی نہیں ہے. اور وہاں جا کے اگر کوئی 7-8 ہزار روپے کا لاس کر دیا تھا, تو بس وہی ہے کہ اس کو پے کرنے کے لیے مشکلات آ رہی تھی. تو والد صاحب کو پتہ چلا. پھر ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سٹا وٹا تمہارا کام نہیں ہے, کرنا ہے تو انویسٹمنٹ کرنا ان فیوچر. بہرحال وہ پیمنٹ دے دلا کے جان چھوٹ گئی. پھر یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج آنا شروع ہو گیا. اسکول لائف ختم ہو گئی. اسکول لائف جب ختم ہوئی تو پھر شوق تو تھا نہیں پڑھائی کا, بالکل بھی پڑھائی کا شوق نہیں تھا. میٹرک کے بعد فل فلیش کام میں آ گیا, مطلب جس کو کہتے ہیں. پھر ایڈمیشن لیا تو فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا, لیکن اس کے بعد میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی بالکل. وہ میری بس فرسٹ ایئر انٹر کا ایگزام نہیں دیا, پڑھائی کی, پیپر نہیں دیے. تو اسٹاک میں بھی بیٹھتا تھا, کریم سینٹر صدر میں تھا, وہاں بھی جا کے بیٹھتا تھا. وہاں میں نے ماشاءاللہ مجھے وہاں کامیابی بھی بہت ملی. اور میں نے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں اور اسٹاک ایکسچینج میں ایک چیز یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریٹیلر کو اگر کسی نے انٹروڈیوس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں
अच्छा लो सस्ती ब्रोकरेज इंट्रोड्यूस मैंने की थी। इसी तरह शॉपिंग सेंटर में करीम शॉपिंग बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर था, उसको मैंने गारमेंट में कन्वर्ट किया जब उनके हालात अच्छे नहीं थे, और उसमें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी। इसके बाद मैंने करीम अपार्टमेंट बनाए मेजना रोड के एंड पे जाके, रूफी बिल्डर्स के आगे आप जाके देखेंगे तो बड़े खूबसूरत उस पूरे इलाके के वो सबसे पुराने अपार्टमेंट है, लेकिन अभी भी माशाल्लाह आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, अभी भी उस इलाके के बेस्ट अपार्टमेंट है। तो ये फील्ड में आ गया, कंस्ट्रक्शन और इक्विटी को दोनों को लेके मैं चल रहा था, और अल्लाह ताला ने मदद की, माँ बाप की दुआएं थी, तो कहीं ऐसी मुश्किल वक्त आता रहा, लेकिन बहरहाल टाइम के साथ साथ ग्रो करते गए। नहीं, हम 5 भाई और 4 बहनें, 9 लोग हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह उन्होंने 3 बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, एक बेटी पढ़ रही है, और सारे मेरे साथ कारोबार में। एक की शादी हो गई है बस, और बाकी एक की जनवरी में इंशाल्लाह शादी है। जी, मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जूनागढ़ से ताल्लुक़ है, कुतियाना बिरादरी का नाम है हमारी, और हम कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत अपने जो काम हैं वो करते रहते हैं, ताकि जमात के लिए भी कुछ ना कुछ होता है। मैं बचपन से मुझे शौक़ जो था वो क्रिकेट में बहुत खेलता था, स्विमिंग में बहुत अच्छी करता होता था, एथलीट्स था मैं। ये कह सकते हैं कि बचपन से ही सोने की आदत कम थी, नींद कम होती थी, और ऑफिस भी जाता था, शाम को एक्टिविटीज़ भी पूरी की पूरी करता था। 4 बजते थे ग्राउंड में चला जाता था, एक्सरसाइज करने के बाद फिर स्विमिंग मिडवे जाता था, वहाँ जाके स्विमिंग कर रहा होता था। इसके बाद वहाँ से सीधा हम गोल्फ क्लब जाते थे, मिनी गोल्फ होती थी हिल पार्क के ऊपर, आपने शायद देखा हो ना देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन उधर जाके हम खेल रहे होते थे। सब कुछ छोड़ दिया, मेरे एंकल में प्रॉब्लम हुई थी, चोट लगी थी, उसके बाद वो पेन काफ़ी रहता था, और मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो वो एक्टिविटीज़ जो मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, जैसे हॉर्स राइडिंग है, वो मुझे छोड़नी पड़ गई। फिर स्विमिंग में कर रहा था, मतलब ये ग्राउंड वगैरह मुझे छोड़ना पड़ा था। हम लोगों ने अकेली जो ब्रोकरेज बिजनेस है, इसमें हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, और वो घर बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, घर बैठ के आप रिसर्च दे सकते हैं, सारे बैंकों से राब्ते होते हैं, आप वहाँ जाके ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन हमने ये इंट्रोड्यूस, पाकिस्तान में हम पहले लोग हैं, दुनिया में भी शायद कोई नहीं होगा, जिन्होंने 100% इन्वेस्टमेंट पे लोगों को राग़िब किया, या और वो जब हम ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, तो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो मेरे साथ काम करते थे उनको यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। लेकिन खुदा अल्लाह ताला ने करम किया, और वो चीज़ आज बहुत कामयाब है, और उसकी वजह से लोग नुकसानात से बचे हैं, उसकी वजह से लोगों ने पैसे बनाए। जब आप, यही मेरी वालिद साहब ने जो मुझे सिखाया था ना, ये सट्टा नहीं करना चाहिए, वो मुझे ज़हन के अंदर है, और उसी चीज़ को मैंने अपने कारोबार में एग्जाम्पल बनाया, और उससे हमारे हज़ारों इन्वेस्टरों को फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा भी इतना हुआ कि कोई सोच भी नहीं थी। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैंने इन्वेस्टमेंट ज़रूर की थी हमारे किसी दोस्त को सपोर्ट करने के लिए। ग्वादर वगैरह सीमेंट में हम लोगों ने है तो सही हमारे पास, लेकिन बहरहाल अभी तक तो वहाँ के हालात ऐसे नहीं है कि कुछ हो सके। देखिए, पाकिस्तान में हमारा स्टेक है, ऑयल एंड गैस में भी स्टेक है हमारा। हमने टेलीकॉम में कदम रखा था, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली, तो हम उसमें से हट गए थे। लेकिन हम अपने बारे में ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के वाहिद लोग हैं जिन्होंने कोई ग्रेट ट्रैफिक नहीं की पूरे पाकिस्तान में। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस बिज़नेस में जितने भी आए,
अगर कोई कंपनी जिसने ग्रे काम नहीं किया तो वो सिर्फ एक केटी है और कोई नहीं। मैं उससे इख्तिलाफात रखता हूँ। मैं कभी भी किसी चीज़ पे प्रोफेशनल रन करे मैं उसका कायल नहीं हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस भी है जो चीज़ आपकी है उसकी देखभाल आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता, और दुनिया ने इसको प्रूव कर दिया। बदकिस्मती ये है कि जब स्कैंडल होता है तो जिसको दर्द मेरी चीज़ होगी तो मुझे दर्द होगा, मेरे नौकर को कभी दर्द नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर 100 में 4 अच्छे होंगे तो 96 तो नहीं होगा। तो ये चीज़ को तो मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट अच्छा तो आ ही नहीं सकता। अब कितना बुरा आता है ये टाइम बताएगा, अच्छा नहीं आ सकता। 4-5 साल हमें हो गए, हम लोगों की मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ सारे बाबे बैठे हुए। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, एज ए रेगुलेटर कंप्लीट फेल। अब ये सारी चीज़ों को देख के दुख होता है। इस मार्केट के लिए हमने अपना खून दिया है, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो दुख होता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आज आप गवर्नमेंट में आ गए और आज ही कुछ दे दो। हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी इतनी बुरी नहीं है। बजट हमारा ठीक दिया है इन्होंने, और वो बजट में हम ये समझते हैं कि शायद 3 महीने में बेहतरी ना आए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर डेफिनेट बेहतरी आएगी, क्योंकि जब डेफिसिट कम होता है तो मुल्क बहुत भागता है और मुल्क पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, रुपी स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी एक्सपोर्ट में यूरोपियन यूनियन वगैरह के सपोर्ट जो मिला है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आपका ट्रेड डेफिसिट काफ़ी कम होगा। फिर ऑयल प्राइस गिर रही है, उसके हम बेनिफिशरी होंगे। फिर ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन हो रही है, उसके हम बेनिफिशरी होंगे। इसके बाद आप ये देखें कि हमने सब्सिडी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। तो ये सारे स्टेप्स लॉन्ग रन में तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम आम हालात में जो हालात देख रहे हैं, जो करप्शन वगैरह की बातें होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। FBR कस्टम लेवल में अगर आप जाके देखें तो वहाँ काफ़ी बेहतरी आपको मिलेगी। तो जाहिर बात है ये सारे सिग्नल ही होते हैं, और यही चीज़ें आगे रन करेंगी, और इसके बाद इसके फ्यूचर काफ़ी बेहतर आएगा। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस, नवाज शरीफ साहब ने शुरू में सख्ती की थी, उसका इम्पैक्ट इनको नेगेटिव मिला था, लेकिन जो अब इन्होंने पैकेज दिया वो डेफिनेट लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करेंगे। अब आप देखना बिल्कुल टर्न अराउंड होगा आपकी पॉलिसी में, क्योंकि हम अपने लोगों को मार नहीं सकते। पाकिस्तान में सख्ती करने का मतलब करप्शन को बढ़ाना, क्योंकि हमारे लोग सब एक जैसे हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज है, मैं 19 हूँ तो दूसरा 18 होगा, तीसरा 20 होगा, चौथा 17 होगा, है तो एक ही चट्टे बट्टे ना। तो अब आप ये करो सख्ती कर दो, तो सख्ती करोगे तो उसके पैसे बनेंगे ब्यूरोक्रेट्स। तो सख्ती ब्यूरोक्रेट्स के लिए होती, सख्ती आवाम के लिए नहीं होती। नरमी जो है ना वो सबके लिए होती है। तो आप ये कह के पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी को सुबह उठ के ख़त्म कर दो, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी एक्चुअल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी में दोनों पहलवान हैं। ये नहीं है कि कोई छूटी का है और दूसरा हाथी है, ऐसा नहीं है। अब वो दोनों पहलवान है, और एक पहलवान को आप अखाड़े से निकाल दोगे तो एक तो कुछ नहीं कर सकते।